یہ سیاسی جماعت ہے، کوئی کلاس روم تو نہیں. تو کس نے کہا، کیوں کہا، اس پہ بات کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آرمی چیف نے آج پاکستانی فوج میں بغاوت کو ہوا دینے کا اشارہ دیا ہے. کیا کہا، کس کے بارے میں کہا، اس پہ بات کریں گے. پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج پی ایس سی کا اجلاس نہیں ہو سکا، ذمہ دار کون ہے، کیا واردات ہوئی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ عدالتی حکم میں ایک ترمیم کی کوشش کی گئی. حکم کچھ اور تھا اور عمران خان کی محبت میں اس کو بیان کسی اور طرح کیا گیا. یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے. ناظرین نادام، میں اعجاز احمد ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں. بس آغاز میں آداب کے بجائے میں روانی میں آپ کو رن ڈاؤن بتا گیا. وعدہ چاہتے ہیں، چلیے آئندہ انشاءاللہ یہ غلطی نہیں کریں گے. ناظرین، یہ جو پہلی بات میں نے کی اسی سے آغاز کر دیتے ہیں. گزشتہ روز عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا اڈیالہ جیل میں، اور سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پہنچے تھے. ان کو ملنے نہیں دیا گیا تھا، وہ کہانی تو میں آپ کو گزشتہ روز بتا چکے. لیکن یہ بھی آپ کو بتا چکے کہ سلمان اکرم راجہ کی جو کوششیں ہیں وہ ان کو عمران خان نے ان کو کرارا جواب تو دے دیا، لیکن اس کی تفصیلات آج مزید سامنے آئی ہیں. انہوں نے سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی میری اجازت کے بغیر عمران خان سے نہیں ملے گا. یعنی پارٹی کے اندر ایک پھڈا پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ان سمیت تمام جو وہ لوگ جو اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور پھر ان کی ملاقات تو ان کی شخصیت کی بنیاد پر ہو جاتی ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو پارٹی کا غدار ثابت کرنے کی کوشش بھی پارٹی کے اندر سے ہوئی. سلمان اکرم راجہ بھی بڑے سخت تھے، بیرسٹر گوہر نے اس کا سخت جواب دیا تھا. گزشتہ روز بھی آلموسٹ یہی ہوا کہ سلمان اکرم راجہ نے اپنا نام بھیجا تھا، بیرسٹر گوہر کا نام بھیجا تھا، نیاز اللہ نیازی کا نام بھیجا تھا. ان سمیت تقریباً 6 نام بھیجے تھے. بیرسٹر گوہر کو بھی انہوں نے بلا لیا تھا اور ایک اور نام انہوں نے بلا لیا تھا. لیکن باقی لوگ جو 4 لوگ تھے جس میں خود ان کا نام تھا، سلمان اکرم کا، نیاز اللہ نیازی کا تھا، ان کو اندر نہیں بلایا گیا. علیمہ خان کو بھی نہیں بلایا گیا. علیمہ خان کو البتہ یہ بعد ازاں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور لوگوں کو یہ بتایا بھی ویڈیو پر کہ مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جمعرات کو ملاقات ہو جائے گی. جمعرات کل ہے، اللہ خیر کرے گا. لیکن جب وہ فیصل فرید چودھری جو ہیں، وہ فواد چودھری کے بھائی ہیں، فیصل چودھری ایڈوکیٹ، وہ پہنچ گئے اڈیالہ جیل. نئی میدان پر جوتھا پہنچے، ان کا نام لسٹ میں تھا لیکن وہ ویگن میں پہنچے، ان کو نہیں بھیجا گیا. فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو ہیں وہ گئے، ان کو فوراً اندر بھیج دیا. وہ ان کی ریلز کے اندر کافی الیکس لائک بھی اور رسپیکٹ بھی ہے. اور پھر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے سلمان اکرم راجہ نے کہ یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان نے کہا وہ دس نانسنس. انہوں نے کہا یہ سیاسی جماعت ہے، کوئی کلاس روم نہیں ہے. انہوں نے کہا سیاسی جماعت میں ایسے کام نہیں چلتا، سیاستدانوں کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. ویسے خیر عمران خان صاحب خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ اور ان کو بارہا یہ مشورے دیے جاتے رہے ان کی حکومت میں کہ یہ نیب کا استعمال چھوڑ دیں اور یہ گفتگو چھوڑ دیں، ملکی حالات کا تقاضا سب کو ساتھ لے کر چلے. لیکن بہرحال اس وقت انہوں نے نہیں کیا. اب وہ اپنی پارٹی کے سیکریٹری جنرل سے یہ توقع کرتے ہیں، ہائے میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال اب وہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ میرا خیال ہے ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے. تاہم ان کے جو پی ٹی آئی کے واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ مانیٹر کی طرح چلانا چاہتے ہیں پارٹی کو، اور اس بات پر یہ پہلا اختلاف ان کا عمران خان سے ہوا ہے. آگے چل کر شاید ان کی پارٹی میں وہی حیثیت ہو جو آج کل اور بہت سالوں ہو گئی ہے، جن کو اب کوئی نہیں پوچھتا، عمران خان بھی نہیں پوچھتے. ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. لیکن سیاسی جو بات ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ سے ہماری کوئی ذاتی مخاصمت تو ہے نہیں. اب آتے ہیں ناظرین ذرا اگلے موضوع کی جانب. آرمی چیف کا جو گزشتہ روز کا خطاب تھا اوورسیز پاکستانی کنونشن، اس کے مزید کچھ نکات سامنے آئے ہیں. ویسے تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نون لیگ نے جو اوورسیز کنونشن کے لیے جو سلیکشن تھی اس میں شاید کوئی ڈنڈی ماری. مثال کے طور پہ یہ کسی نے یہ مجھ سے سوال کیا کہ جناب وہ کیا سندھ کے اور بلوچستان کے لوگ بیرون ملک نہیں گئے ہوئے، وہ اوورسیز پاکستانیز نہیں ہیں؟ کیونکہ جو لسٹ ہے بظاہر اس میں کچھ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہوں یا سندھ سے تعلق رکھتے ہوں.
लेकिन बहरहाल हमने जब ये तलाश किया तो पता ये चला कि एक सिंधी कम से कम जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई कि वो आए हैं पाकिस्तान, इसी कन्वेंशन के लिए इनवाइट किए गए। फ्रांस में हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की और गालबन वो सिंधी दोस्त भी फ्रांस में ही हैं। बहरहाल बलोचों के हवाले से अभी तक ये नहीं आई है, बलूचिस्तान पर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है हुकूमत को। उम्मीद है अगले कन्वेंशन में हुकूमत अपना ये जो है गलती नहीं दोहराएगी। लेकिन आज आर्मी चीफ का जो खिताब था उसकी तरफ आते हैं। उन्होंने बाकी तो जुमले जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो आर्मी चीफ का के होते का भी तकाजा है कि जब वो कहीं खिताब करे तो उनको अपनी फोर्सेस का मोराल बुलंद रखना होता है। फिर ऑडियंस के हवाले से कुछ जुमले कहना होते हैं। लेकिन उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात कही। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी जो है वो पाकिस्तान को का बाल बिका नहीं कर सकती, यानी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगला जुमला उनका ज़्यादा यूँ समझिए कि ज़्यादा वाइब्रेंट भी है, ज़्यादा अहम भी है, क्रिटिकल है वो जुमला, और ज़्यादा उसके उसके नतायज जो है वो किसी और को भुगतना भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग फ़ौज में बगावत को हवा दे रहे हैं वो गद्दार हैं, एक तरह से वो वतन दुश्मन हैं, वो गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। और वो किसके बारे में कहा, फ़ौज में इख्तलाफात को कौन हवा दे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर ज़रा तबसरा करना चाहिए, ज़रा इसका जायज़ा भी लेना चाहिए। आर्मी चीफ ने ये कहा, जब तो उनका उसका निशाना जो है वो मुल्क दुश्मन है का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। आर्मी चीफ जब ये कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब 9 मई और पोस्ट 9 में जो हालात हैं और उससे कुछ पहले के, उनकी जानिब इशारा है। यानी उससे पहले अफवाज पाकिस्तान को शहबाज गिल सामने हैं, उन्होंने तो बाकायदा ये कहा। फिर इमरान खान ने भी कहा कि गैर आइनी अहकाम अपने अफसरान के नहीं मानने चाहिए, गैर कानूनी अहकाम नहीं मानने चाहिए। ये कौन तय करेगा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन उस वक्त उनका ये कहना था कि फौजी अपने आप को दूर कर लें। ये पीटीआई ऑफिशियली पीटीआई इंटरनेशनल जो है उसके लोग भी, और खुद इमरान खान के हवाले से भी पीटीआई ऑफिशियल ये इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करती रही है। वो जुमले ज़रूरत पड़ी तो तलाश भी किए जा सकते हैं। लेकिन ये फिर आपको याद होगा कि जब 9 मई हुआ तो उसके बाद जो है वो फिर अफवाज पाकिस्तान ने अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ भी कार्रवाई की। और वो क्यों की थी? फिर उस वक्त इरफान सिद्दीकी ने करार दिया, आई वॉज जीवन, जिसने अपने हेड ऑफिस को ये खबर भेजी। लेकिन चूंकि ये हमारे चैनल के कद से बड़ी खबर थी तो रोक ली गई थी। इरफान सिद्दीकी साहब का आर्टिकल आया, उसके बाद इसके ऊपर डिबेट हुई। उन्होंने कहा ये अफवाज पाकिस्तान में बगावत की कोशिश थी 9 मई। और उसके बाद मुसलसल ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत और रैंक्स में एंड फाइल्स में जो है वो इख्तलाफात पैदा किए गए। ये बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अब आपको पता है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो कैद में हैं। और उनके बारे में एक इत्तला तो ये है कि उनको कुछ संजीदा बीमारी थी, तो वो इलाज के लिए फौजी हॉस्पिटल में दाखिल हुए। लेकिन वो बहरहाल वो फौजी कैद में हैं और अभी तक वो अब वहाँ नहीं है। वो मेरी इत्तला ये है कि वो हॉस्पिटल आए थे, एक आध दिन उनको रखा गया, फिर उनको डिस्चार्ज करके वापस उसी जगह पहुँचा दिया गया जहाँ वो मुकीम है। फ़र्द जुर्म उन पर आयद हो चुकी है। अब 9 मई के तनाज़ुर में आर्मी चीफ का ये बयान देखा जाए तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो है वो, एक डिबेट भी हो रही है कि इमरान खान जो है वो भी निशाना तो नहीं, वो भी इसमें इनका उनका ट्रायल भी होगा। तो इसलिए कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जनरल फैज़ ने जो कुछ भी किया इमरान खान की वहाँ पर किया। फिर जीएस के ऊपर अटैक को आप किस ज़ुमरे में लेंगे? इमरान खान के बहुत सारे करीबी लोग उस अटैक में मुलविस रहे हैं। कोर कमांडर हाउस को तो जला भी दिया गया, वहाँ कायद-ए-आज़म का पासपोर्ट भी जलाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो बड़ी, और इन्वेस्टिगेशन में भी ये कहा जाता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है फौजी ट्रायल का, तो इसलिए जो है वो इस्लात दहशतगर्दी की अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। मेरी नज़र में ये तकरीबन 8 महीने होंगे, क्योंकि इसका तफसीली फैसला आना है और उसके बाद फिर वर्किंग डेज और ऑफ डेज जो है वो अलग अलग किए जाते हैं।
हॉलीडेज़ उसमें अलग की जाती हैं, नेशनल हॉलीडेज़ अलग की जाती हैं, तो उस तरह वो तकरीबन 6 से 8 महीने का स्पैन बन जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा जो है वो पाक फ़ौज के लिए एक इंतहाई संजीदा मामला है, क्योंकि ये उसकी उस पर अटैक का मामला है। और आर्मी चीफ का जो खिताब है उसको उसी तराजू में भी देखना चाहिए, लेकिन फ्रॉम द टॉप मैन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस किस्म का जुमला उन्होंने पब्लिक का एड्रेस में अदा किया है। अब ज़रा अगला मौजू देख लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें चेयरमैन राबता सज्जाद गनी जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है वो भी मौजूद थे। सनाउल्लाह मस्तिखेल का ताल्लुक पीटीआई से है। अब वो ज़ाहिर सी बात है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसी जो पार्लिमानी कमेटियाँ, इनमें अरकान बहुत सख्त गुफ्तगू करते हैं, बहुत सख्त सवाल पूछते हैं। और वो सख्त सवाल जो है बाद औक़ात तो वो अपनी पोलिटिकल लीनिंग के हिसाब से भी पूछते हैं, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि चीज़ें जो है वो पब्लिक को पता चलना चाहिए कि पार्लियामान काम कर रही है। एक बुनियादी मकसद उसका यही होता है। तो उन्होंने उस पर कुछ तर्क कलामी हुई। सनाउल्लाह मस्तिखेल ने गालिबन ये पूछा कि क्या कोई सिविलियन इस ओहदे का अहल नहीं है। तो चेयरमैन राबता ने उनको ये कहा उसके जवाब में कि मैं मेरिट पर आया हूँ, मेरी 40 साल की 45 साल की सर्विस है। तो बहरहाल अब वो ये वापडा के हवाले से जो पॉलिटिक्स होती रही है, पहली दफ़ा कौन फौजी सरबराह आया, कैसे आया, ये भी इस पर फिर अगली किसी नशिस्त में बात करेंगे। पहले भी एक दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं। लेकिन जो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फिर इजलास था, सनाउल्लाह मस्तिखेल ने, मैंने ज़ाती तौर पर उसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन सनाउल्लाह मस्तिखेल ने वहाँ रिपोर्ट किया कि जी मेरे और मेरे रिश्तेदारों के मीटर उतार के ले गए कल रात वापडा वाले, और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जो है वो पीटीआई के पास है। जुनैद अकबर जो है वो भी हार्ड लाइनर है, उनके पास है। तो अरकान ने फिर सख्त रवैये का इजहार किया और आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास नहीं हो सका। चेयरमैन वाड्डा को भी ये सोचना चाहिए, वो अब एक तो हाजिर सर्विस नहीं है, दूसरा अगर हाजिर सर्विस भी हो तो जाहिर सी बात है ये एक टेक्निकल जॉब है, जिसमें आपको कई किस्म की महारतें दरकार होती हैं। आपको उस इशू का जिसको आपने एड्रेस करना है नो हाउ आपको होनी चाहिए, हाउ टू एड्रेस आपके मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए, आपकी बैकग्राउंड होना चाहिए मैनेजमेंट का। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड होना चाहिए, टेक्निकल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड होना चाहिए। टेक्निकल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड तो उनका है, क्योंकि वो अपनी तकर्रियों में वो कई ऐसी जगहों पर भी रहे हैं जहाँ से दरिया पहाड़ गुजरते हैं और हैं, और फिर वहाँ आर्जी पुल बनाए जाते हैं और बहुत कुछ किया जाता है, सैलाब में मदद की जाती है। तो वो इस हवाले से उनकी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ तो मौजूद होंगी, लेकिन क्या वो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट की स्किल उनकी है, वो उसी हवाले से सवाल उठा था। उनको भी ज़रा अगर ऐसा किया है, क्योंकि मैंने अभी तस्दीक नहीं की, तो ये ग्रेस करना चाहिए। सनाउल्लाह मस्तिखेल जो है वो सियासतदान है, सियासतदान बाद औक़ात ऐसी बातें कर भी जाते हैं, उसको दरगुज़र करना चाहिए। आर्मी चीफ रोज़ाना दरगुज़र करते हैं। नाज़रीन अब ज़रा देखते हैं, आज एक और इशू राइज़ हुआ है। आज अदालत में एक दरख्वास्त ज़मानत थी बानी पीटीआई की, इमरान खान की। सलमान सफदर ने आज उनसे मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया और फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप जाकर मिलें, आज आपकी मुलाकात शायद हो जाएगी, आप जाकर मिलें। मैं ऑर्डर में नहीं लिखता, आप खुद जाकर मिलें। लेकिन जो मोहब्बत का शिकार है जर्नलिस्ट दोस्त, उन्होंने, मैंने अपनी रिपोर्टर से पूछा, वो भी पीटीआई की मोहब्बत का शिकार है, लेकिन उसने वो प्रोफेशनल उसने रिपोर्टिंग की, उसने वही जुमले कोट किए जो चीफ जस्टिस ने अदा किए थे। मैंने उससे पूछा तो उससे बताया कि जी बिल्कुल जो मैंने लिखा है वो ही है। और पीटीआई के लोगों की मोहब्बत में बात दोस्त उन्होंने फैब्रिकेट किए हैं कुछ जुमले, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जर्नलिस्ट जो है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, बहुत सारे और जो दोस्त भी जर्नलिस्ट हैं। अगर जर्नलिस्ट मोहब्बतों का शिकार होगा, असल रिपोर्टिंग कौन करेगा? असल रिपोर्टिंग अगर गुम हो गई तो सच गुम हो जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा